पसंद करूंगी. What will happen be the scene in future? But something interesting came up in your conversation. That is Dhurandhar. Yeah. So let's come to the one. Okay. What do you know about Dhurandhar? Nothing. क्या देखा है Dhurandhar? Sorry, nothing. I have no idea. No क्योंकि मैं no नहीं, मैंने टीजर ट्रेलर भी पूरा नहीं देखा बिकॉज नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला या मुझे इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया उस मूवी को देखने के लिए, तो मैंने नहीं देखा. So you have no idea about Dhurandhar. नो सॉरी, नो. Basically, it also happened because it's a spy movie, and we have also already seen Pathan, Tiger 3, and there's a both spy universe that is going on. But trust me, Akshita, Dhurandhar is a masterclass for big filmmaker to how to book your audience. ओके. Because nowadays the most problem is your cinema hall is competing to mobile phones. The interesting, any uninteresting scene, कोई भी ऐसा सीन आ जाता है जिसमें ऑडियंस का ध्यान खींच जाता है ना, नहीं खींच पाता, तो मोबाइल में देते रहते हैं. मेरे थिएटर में कभी मैं जाता हूँ देखने, इतना गुस्सा आता है मुझे. लोग अपना वो मूवी छोड़ के PUBG खेल रहे हैं, लोग कौन बात कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हैं. That is something which is very very important to understand, that now filmmaking is a war and we are fighting against social media, mobile phones, all the other distractions. So इस केस में धुरंधर ने एक ऐसा काम किया है जो मैं बोलूँगा विल बी हिस्टोरिकल. ओके. और एक पैटर्न देख सकते हैं. 2023 दिसंबर के महीने में एक मूवी आई थी जिसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी, एंड दैट वाज रणबीर कपूर्स एनिमे. ओके. That was also 3 hours and 21 minutes long. That was also adult A-rated movie, या. and people were praising the world building, and people were criticizing for no reason that it was a misogynistic movie. I give Banga कि बिग बांगा ने अपनी थिएटर में ऐसी फील्ड्स डाल दिया जिससे ऑडियंस टिकट हो जाए. वो उसकी फिल्म मेकिंग है, उसको कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है जिसके वजह से लोग टिकट खरीदते हैं कि ऐसी क्या कॉन्ट्रोवर्सी जिससे ये फिल्म को इतना बाइबॉट किया जा रहा है. ओके. एक मैंने आपको रिव्यू भेजी थी, ऑकवर्ड बोर्ड करके कोई क्रिएटर है, दैट ही हैज नो आइडिया अबाउट धुरंधर. उसने से मिसोजिनिस्टिक बोल दिया. एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान में जाके ऑपरेशन कवर कर रहा है, दैट तू से मिसोजिनिस्टिक कहाँ से आ गया? आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दैट. और Dhurandhar is an exhausting, I am more exhausted with the repeated, relentless, aggressive display of too much testosterone, hyper masculinity. and inflammatory anti-Pakistan narrative. और ये पूरा जो कल्चर है, बिना किसी चीज को देखते अगर ट्रेंड में कोई चीज है तो उस पर बात शुरू हो जाती है. धुरंधर में बात शुरू हो गई तो लेफ्ट लोग, जो लेफ्ट लीडिंग लोग हैं, उसे एंटी पाकिस्तान बोल रहे हैं, उसे मिसोजिनिस्टिक बोल रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ कि ऐसा कौन सा सीन है. तो मैंने एक चीज नोटिस करी, पैटर्न नोटिस किया है कि यूट्यूब पे दो क्रिएटर्स मिले मूवी व्यूज के, जब तक जहां हम बात करें. एक जो फिल्म जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं जिन्होंने इसकी डिग्री ली है, और एक जो किसी और फील्ड कर रहे थे, जैसे कोई साइंस से था, कोई किसी और फील्ड से था, उसने अपना यूट्यूब चैनल खुला. नाउ ही इज अर्निंग इन लैक्स ओके. ओनली बाय रिव्यूइंग मूवीज एंड ऑल दैट. तो जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसमें आप हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के जर्नलिस्ट है अनुपमा चोपड़ा, एंड देयर इज एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है सुचायता त्यागी, and a lot more like liberals like that, they are calling out Dhurandhar for being anti-Pakistan. Okay. But what happened? Where were they when Pakistan attacked in Telegram? When Pakistan was responsible behind 26/11? When Pakistan was responsible behind parliamentary attack happened in 2001? Okay. We don't know who was behind the recent metro Delhi attack that happened near airport. Yeah. So, what do you think about film journalism as a body topic? Because we are talking about that, though, that's except we are talking about a distinction between film viewers who are independent and film viewers who studied this field, who are in this field. And they are just, I think they are kind of, I think their reading of the movies sometimes differ from the audience. And पता है लोगों का concept क्या हो जाता है क्या इस लेडी में, जैसे अनुपमा चोपड़ा ने सुचायता त्यागी ने इस मूवी को खराब था है, तो अब तो ये मूवी डेफिनेटली देखती है. तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है अगर उन्होंने बोला है. देन अगर वो मूवीज को रिव्यू कर रहे हैं तो वो जर्नलिज्म क्या
किस फील्ड के जर्नलिस्ट हैं, वो आपको पता है? फिल्म जर्नलिस्ट। फिल्म जर्नलिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली वो फिल्म के उनका काम है ये चीज़ कि वो फिल्म को देखेंगे, उन्होंने देखी होगी, उसके बाद ही उन्होंने कोई कमेंट करा होगा, राइट? या तो उन्होंने देखा, वो उनका काम है कि हम फिल्म को देखें और उनका जो भी ओपिनियन है उसको लेकर, या जो भी ऑडियंस का ओपिनियन है उसे लेकर वो आगे कन्वे करें, ठीक है? फॉर समथिंग जो आपने बोला कि उन्होंने उस टाइम ये चीज़ें क्यों नहीं बोली जब पहलगाम अटैक हुआ, या जब 26/11 हुआ, या फिर जो अभी रिसेंट हमारा रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास जो अटैक हुआ, धमाका हुआ, उसके लिए उन्होंने क्यों नहीं बोला? तो दैट इज़ समथिंग, क्योंकि वो फिल्म जर्नलिस्ट हैं तो इसलिए वो फिल्म के बारे में तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बट अब जो चीज़ इंडिया में हुई है अलग, अदर देन दैट जो भी इंसिडेंट हुआ या जो भी इवेंट हुआ उसके लिए वो बोले ना बोले, दैट इज़ देयर चॉइस, उन्हें बोलना चाहिए या नहीं। बट क्योंकि वो फिल्म जर्नलिस्ट है, उनका काम है, ऑब्वियसली अपना काम के से रिलेटेड तो वो बोलेंगे ही ना। तो इसमें वो तो उनकी मर्ज़ी है, वो इवेंट के बारे में बोले या ना बोले। तो आप किसी को ऐसे टारगेट क्यों करते हो? आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, बट कभी कभी की लगता है दैट अ जर्नलिस्ट हैज हिज ओन पर्सनल एजेंडा अबाउट अ फिल्म, अगेंस्ट अ फिल्म, एंड दैट एजेंडा इज नॉट मैचिंग विद द ऑडियंस। सो ऑडियंस कॉल आउट करती है, इतना कॉल आउट किया कि आप तो आपने कंटेंट डाला है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तो आप कंटेंट डालती हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूट्यूब का रिव्यू डाला था 5 सितंबर मूवी की, 2 दिन बाद वो वीडियो रिमूव कर रही है। ओके, इतना बैकलैश मिला उस वीडियो को। देखिए धुरंधर मैंने नहीं देखी है तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती कि मूवी के अंदर क्या है क्या नहीं है। मुझे ये याद है कि मैंने लास्ट नाइट एक पोस्ट देखा था जिसमें धुरंधर के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने ये क्लैरिफाई करा है, क्योंकि लोगों का ये मिसकंसेप्शन था कि ये मूवी किसी पर्टिकुलर मार्टियर सोल्जर पे बेस है, मोहित शर्मा या उन पर बेस रहे, तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया। तो लोगों ने क्यों सोचा कि ये मोहित शर्मा पे बेस्ड है, क्योंकि उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने मोहित शर्मा के बेस पे ये मूवी नहीं बनाई, उनकी कोई बायोपिक वगैरह ये नहीं है, हमने ये अलग बनाई है। अगर हम कभी उन पे मूवी बनाते हैं तो हम ऑब्वियसली उनसे पूरी परमिशन लेंगे या उनके फैमिली से परमिशन लेंगे, या हम सब कुछ ये प्लान आउट करके चलेंगे, हमने ये मूवी उन पे नहीं बनाई है। तो लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन क्यों आए कि मोहित शर्मा पे? बिकॉज मोहित शर्मा, ये इवेंट्स होते हैं 2002 और 12 के बीच में, मोहित शर्मा वॉज एक्टिव ऑन दोज ईयर्स। तो इट्स द मिसकंसेप्शन जिसको उन्होंने क्लियर कर दिया फिल्म के इसके पहले। फिल्म देखने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन मोहित शर्मा। हाँ, तो वही तो, अगर आप कोई भी कंटेंट होता है, लोग अलग अलग तरीके से उसे परसीव करते हैं, ठीक है, उसे अलग अलग, उनका माइंडसेट सबका अलग होता है, सब अपने, जैसे हम सबको पता ही है कि हर एक इंसान अपने में यूनिक होता है, तो ऑब्वियसली सबका दिमाग अलग चलेगा, कोई किसी को कैसे लेगा। तो अगर उन जर्नलिस्ट ने ऑडियंस ओपिनियन के हिसाब से कुछ दिया है तो वो ऑडियंस का ओपिनियन लेकर उन्होंने दिया। अगर उनने फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बोला माइथोजेनिस्ट है, तो वो उनका खुद का ओपिनियन होगा, उन्हें लगा होगा कि मूवी माइथोजेनिस्ट बेस्ड है, बट मैं नहीं कमेंट कर सकती क्योंकि मैंने देखी नहीं। एक और ट्रेंड मैंने नोटिस किया, अगर आपकी किसी और बिजनेस का किया हो तो बताना। फर्स्ट डे पे इसका कलेक्शन कुछ 27 करोड़ 28 करोड़ था फॉर धुरंधर, यस। ओके, एंड फॉर जो सेकंड फ्राइडे था, तो देयर इज फर्स्ट फ्राइडे जिस पे तब रिलीज होती है, सेकंड फ्राइडे मतलब 1 हफ्ते बाद जब उसका सेकंड फ्राइडे आया तो उसका कलेक्शन 40 करोड़ रुपीस हो गया, वर्किंग डे पे 40 करोड़, दैट इज ह्यूज। और ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे कि फिल्म रिलीज पे वायरल होना शुरू हुई, न्यूज चैनल पे डिबेट होना शुरू हुई कि लोगों ने इस फिल्म को जब एंटी पाकिस्तान बोला, तो यू नो दैट कि आजकल लोग गोदी मीडिया बोल देते, तो उनको वो मीडिया ऑन भी करती है, तो वो इस बात को डिफेंड कर लेते हैं, दिस शिट शुड बी एंटी पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने टेरर अटैक्स प्लान किए हैं इंडिया पे। पाकिस्तान के देखो एक जनरल अर्जुन आम्बार प्लेड अ कैरेक्टर, उनका नाम था इमेजर इकबाल, दैट कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय रियल पर्सन, रियल IAS टाइप एजेंट। ये उन्होंने बोला है फिल्म मेकर्स, ये फिल्म मेकर्स ने बोला है? बिल्कुल सेम, नाम भी सेम है, रहमान डकैत, अक्षय खन्ना का नाम है फिल्म में, रहमान डकैत वाज अ गैंगस्टर इन पाकिस्तान। ओके, और एक और बात, संजय दत्त एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका नाम है इकबाल, सॉरी असलम चौधरी, दैट कैरेक्टर इज ऑल्सो एग्जिस्ट। उनकी बीवी जो थी, उस कैरेक्टर की बीवी, मतलब कि उस जो रियल पर्सन है उनकी बीवी ने बोला भी था कि संजय दत्त टैटो प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्टफुली प्ले करना चाहिए क्योंकि रिस्पेक्टेड कॉप थे अपने टाइम के। लेकिन यहाँ पे संजय दत्त को बहुत करप्ट दिखा है और बहुत ज़्यादा
यहाँ पे संजय दत्त का पोर्ट्रेयल नेगेटिव शेड में rather than positive, तो वो तो फिल्म मेकर की चॉइस है। अब पाकिस्तान में इस फिल्म को मैं आपको बता दूं, न्यूज़ जिससे न्यूज़ कह रहे हैं कि 6 गल्फ कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है। दिस मूवी इज बैन, कॉलिंग इट एंटी मुस्लिम। ओके जबकि ये पूरी की मूवी कोई भी पाकिस्तान सिचुएटेड है। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट्स रिलेटेड टू द मेंटालिटी ऑफ दो गैंगस्टर्स, मेंटालिटी ऑफ टेररिस्ट, मेंटालिटी ऑफ दोज पीपल हु आर इन दिस सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि कभी कोई हार्ड हिटिंग मूवी आती है तो डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन आपने मूवी देखी नहीं है, नायक हो दैट आपने रील्स वगैरह स्क्रॉल करी इस 7 अगुनों में, मैंने धुरंधर की नहीं देखी, आई एम सो सॉरी। कोई रील्स आपकी फीड पे नहीं है? नहीं, एज सच कोई धुरंधर रिलेटेड रील्स नहीं है। बिकॉज पता है आजकल क्या होता है कि मूवी थिएटर में पहले रील्स के साथ चलती है। हाँ, तभी मैंने आपको इसलिए बोला था कि OTT पे देखने में वो इंटरेस्ट या वो एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी रील से आधी स्टोरी समझ में आ जाती है। डू यू नो अबाउट कि बॉबी देओल एनिमल में उनमें एक सॉन्ग था जमल पुत्तू, हाँ वो आपने सुना है वो सॉन्ग? हाँ वो वैसा ही कुछ रिक्रिएट हुआ है। अक्षय खन्ना एक बलूचिस्तान एक जगह है पाकिस्तानी साइड में, वहाँ पे उस एरिया में जाते हैं, उनका किताब में आता है शेर बलूच, तो वहाँ पे वो जाते हैं तो उनका फेस्टिवल होता है, तो उनका एक लोकल सॉन्ग बंजी सॉन्ग बजता है और बहुत ही ज़्यादा कैचिक सॉन्ग है, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, रील पे वायरल हो रहा है और मैं उसकी इतनी रील्स देखता हूँ। और पता है आज मैं मेट्रो में आया था, 2 बंदे मुझे दिखे जो अपने मोबाइल में धुरंधर दिखे, ओके पाइड हो गई, ओके। दैट वाज लाइक। तो इस मूवी ने लिटरली लोगों के दिमाग में डाल दिया PR अच्छा होगा, वो मूवी अच्छी होगी कि लोगों को पसंद आई। नहीं, मूवी अच्छी नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे कि बहुत उन्होंने लाइक हिस्ट्री क्रिएट, PR अच्छा नहीं है। मेरे के हिसाब से तो PR उन्होंने बहुत पहले ट्राई कर दिया था, क्योंकि मुझे याद है मूवी के रिलीज होने से कुछ महीनों पहले ही रणवीर सिंह ने अपनी पूरी फीड हाइड कर दी थी और सिर्फ धुरंधर के 3 कंटेंट पोस्टेड थे। यही उसमें जो जिसने एक्ट्रेस रोल प्ले करा है उसने भी अपने अकाउंट पे, हाँ उसने भी अपना सारा कंटेंट हाइड करके सिर्फ धुरंधर की रील्स या पोस्ट अपने अकाउंट पे पब्लिश कर रखी थी। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ PR ओनली। So as you all know, And with- मैं बोल रहा हूँ कि अक्षिता is I think in today's time आजकल आप बहुत बिजी रहती है, you don't use much social media because रणवीर सिंह ने बहुत बड़ा बिल्डर करी है सबसे पहले। ओके, सो मैंने उस न्यूज़ को इतना फॉलो नहीं करा, तो नहीं। News was रणवीर सिंह should, I think he's a good actor, he should stay quiet। अगर अपने रूम में बंद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, बस से एक्टिंग करने आएगा तो दैट्स समथिंग यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो सोच समझ के बोलना, कहीं बाद में लोग आपको आगे ना कुछ बोले। sometimes he says things in his interviews that is very very wrong। ओके, लाइक बिकॉज कांतार एक मूवी है तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि एक देवी माँ तभी एक पोजीशन पोजेस कर लेती है इंसान को, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कांतारा। तो रिसेंटली इवेंट में गए थे रणवीर सिंह और ही इज वेरी वेरी टॉपिटेड, तो वहाँ पे ऋषभ शेट्टी बैठे थे मे एक्टर ऑफ कांतार एंड रजनीकांत वाज आल्सो सिटिंग देयर। तो उन्होंने इस चीज़ को ऋषभ शेट्टी ने कॉल आउट किया था कि थिएटर्स में लोग उनकी एक्टिंग करे थे, बट दैट इज वेरी सीक्रेट टू दैट। वो उस एरिया में उसे एक प्रथा मानी जाती है और वो अगर मजाक में किया जाए तो दैट इज नॉट वेरी गुड। तो वो रणवीर सिंह ने वो एक्टिंग कर ली, पहले ऋषभ शेट्टी के सामने करी, ऋषभ शेट्टी ने पहले मना किया उनको, या फिर स्टेज में भी जाकर उन्होंने वो सेम चीज़ करी और उन्होंने जो देवी आती है उसको घोस्ट बोल दिया, दैट फीमेल घोस्ट एंटर्स योर बॉडी। तो उन्होंने कांतारा प्रॉपरली नहीं देखी थी, उन्होंने रील्स को देखी थी और उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन बोल दी, उसके बाद उन पे तो जो ये फेमस पीपल होते हैं, हाँ इन्हें थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि उनको देखकर ही आगे और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हाँ, परफॉर्मेंस I don't know, I've not seen much of his films. Yeah. मैं बताऊं कि नहीं? हाँ, आप बता दीजिए अपनी। धुरंधर लोग कह रहे हैं कि इसकी, आपको तो मुझे समझ में आ गया, धुरंधर बहुत पसंद आई है, ठीक है, आई गॉट इट। मैं धुरंधर नहीं बोलूंगा, तो बोलूंगा एक मूवी आई थी उसमें एंटर है संग्राम भाले, सिम्बा। वाह, Yeah, कैरेक्टर इज वेरी गुड। yeah, the story was nice. मतलब मैं बोलूंगा कि सिंघम अगेन जो फिल्म थी जो पिछले साल आई थी दिवाली, दैट वाज अ वर्स्ट फिल्म एवर प्रोड्यूस्ड बाय रोहित शेट्टी और डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, बट जब संग्राम भालेराव आते
जब रणवीर सिंह उस कैरेक्टर में जाते हैं, इन सिंघम अगेन, सिंघम अगेन, सूर्यवंशी एंड सिम्बा, तीनों में उनका रेटेड सेम था, संग्राम भालेराव। एंड दैट इज, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो जब मूवी ना, वो हर रात जाते थे और रोज देखते, तो यू कैन वॉच इट एवरी टाइम। तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस वो इतनी अच्छी लगी होगी कि मैंने कुछ, उनको सेटिस्फैक्शन मिली होगी कि मैंने कुछ ऐसा करा जो मुझे खुद पसंद आ रहा है। जब तक इंसान को कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी वो नहीं करेगा। يا اخي دوس دوس عندي خوش فصله، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه، يا اخي